Hello everyone, welcome to this video and today in this video I am going to share you with the notes of generic elective subject digital communication. So uploading this video on 28th of Feb and the examination of this GE subject digital communication is on 7th of March. So please share with your friends so that they can also benefit from this video and take the help from the notes that I have created. And I have put my efforts, so much of efforts in making this notes and video because there is no study material and anything available on the internet because this is a newly introduced subject in GE. So a lot of research has been put in this video and for making notes. So start करते हैं without any further delay. First of all, take a look on the syllabus. In syllabus you have to cover 3 units. First unit is constructing a self, okay, in which you have to create a personal professional profile for social media, example Facebook, LinkedIn, Insta, etc. Okay, so you have to in this unit you will learn how to create these profiles on social media. Second topic in unit 1 is that striking a formal informal conversation, जैसे कि how to talk to anyone and how to interact with anyone. And in this you will get to learn about register, tone and vocabulary. These are the three grammatical terms: register, tone and vocabulary. These are the three grammatical terms that you will learn. Okay, and the third part is social media etiquette. Social media etiquette means what are the disciplines and some decorum that you maintain while using the social media. You will learn this in this. Okay, next is unit 2, expressing the self. I mean, how you express yourself through, first is that through blogs, a Facebook post, or expressing likes and dislike. How you express your likes and dislikes on social media and blogs and Facebook post, etc. You will learn in this. Okay, second is that formal and informal correspondence, email, making announcement on social groups, expressing, declining interest, making request, sharing information. For example, if you are you receiving any request of for something, then you have to decline or you have to accept. You have two choices. So if you like the request, I mean like the offer, then you will surely accept it. But if you haven't liked the offer that you are receiving, then how you decline the request. So you will learn about this. I mean, आपको अगर कोई ऑफर आता है तो अगर आपको पसंद है तो आप एक्सेप्ट करोगे, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप उसको डिक्लाइन करोगे। लेकिन उसके भी तरीके होते हैं कि कैसे डिक्लाइन करो कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और आप उसको आसानी से डिक्लाइन भी कर सको। उसके बाद कैसे इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, कैसे फॉर्मल और इनफॉर्मल ईमेल कर सकते हो, कुछ भी जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है फॉर्मल और इनफॉर्मल दो तरीके से होता है, वो कैसे कर सकते हो, ये सब चीजें इस यूनिट में पढ़ना है। मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे पढ़ा नहीं रहा हूँ, बट क्योंकि नोट्स मैंने बनाए हैं बहुत रिसर्च करके, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ आपको ये आइडिया दे दूँ जिससे कि आपको भी कुछ दिमाग में रहे तो आप वहाँ पे लिख पाओ अगर रिलेटेड कुछ भी चीजें आए तो। फिर यूनिट थर्ड में एक्सप्रेसिंग विजुअली। विजुअली आप कैसे कोई चीज एक्सप्रेस कर सकते हो, तो आप एक ब्लॉग बना सकते हो, जैसे कि सबको पता है ब्लॉग क्या होता है। तो आप ब्लॉग बना के आप अपने आप को विजुअली एक्सप्रेस कर सकते हो। बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी के थ्रू भी आप कर सकते हो वही चीजें। सेकंड इसमें पढ़ना है स्ट्राइकिंग ए रैपोर्ट, कनेक्टिंग विद व्यूअर्स ऑडियंस। आपका कुछ अपना कुछ एक तरीका होता है जिससे कि उसको आप ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए यूज करते हो, अपना कोई रीजनल चीजें होती हैं, फिर कुछ भी ऐसा चीज होता है जिसको आप यूज करके करते हो, तो उस ये चीजें इसमें पढ़नी है सेकंड वाले में। थर्ड यहाँ पे है मॉडरेटिंग कंटेंट। आई मीन कैसे आप कंटेंट को मॉडरेट करके इमेजेस और जो भी चीजें, ये सब इसमें पढ़ना है। तो ओवरऑल आपको आइडिया लग गया होगा कि कंस्ट्रक्टिंग अ सेल्फ, एक्सप्रेसिंग सेल्फ एंड एक्सप्रेसिंग विजुअली, इन तीन चीजों पे ध्यान देना है। और इसके मैंने नोट्स बनाए हैं और इन तीनों मतलब फुल सिलेबस के नोट्स मिलेंगे आपको। बहुत ही मेहनत लगी है इसमें, फुल सिलेबस नोट्स मिलेंगे, बट हाँ वो तो बहुत लॉन्ग और डिटेल्ड नोट्स नहीं है, बहुत कंसाइजली है जिससे कि आप पढ़ सको। अभी ज्यादा टाइम आपके पास है नहीं, तो उस टाइम में आप कर सको, तो ये बहुत ही चीजें हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। बस आपसे ये चीजें कि आप जितना से ज्यादा हो सके शेयर कर दो उन लोगों को जिससे कि उनकी हेल्प हो जाए। आई एम डूइंग दिस फॉर सोशल कॉज, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग एडवांटेज फ्रॉम दिस। ओके, तो पहला यूनिट में कंस्ट्रक्टिंग सेल्फ जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं ओवरऑल थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करते चल रहा हूँ जिससे कि थोड़ा आपको हेल्प मिल जाए। जैसे कि इसमें क्या होता है, जो आपको सेल्फ है आपका, उसको कैसे आप कंस्ट्रक्ट करते हो, कैसे बनाते हो, वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आपके जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है, आपकी अपब्रिंगिंग कैसे आपकी पालन पोषण हुई है, क्या आपने एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं, कैसा रिलेशनशिप है आपका, कल्चर और बहुत सारी चीजें इस पर डिपेंड करता है आपका सेल्फ। और वो बनने में टाइम लगता है, एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। तो यहाँ पे आपका सेल्फ जो है जो बहुत सारे स्टेप्स दिए गए यहाँ पे, here are some steps you can take to work on developing a strong sense of self। पहला, reflect on your values, beliefs and goals। okay, identify your strengths and weakness,
डेवलप अवेयरनेस, सेट बाउंड्रीज, प्रैक्टिस सेल्फ केयर, इन सब चीजों को फॉलो करके एंड सीक फीडबैक एंड सपोर्ट, इन सब चीजों को फॉलो करके आप अपना एक सेल्फ जो है बना सकते हो, कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो इन चीजों को बस एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, बेसिक चीजें इतना तो सबको पता होगा आप लोगों को, ठीक है। दूसरा है क्रिएटिंग ए पर्सनल प्रोफेशनल प्रोफाइल फॉर सोशल मीडिया। तो कैसे क्या है वो भी मैंने यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है, बोल्ड भी कर रखा है, इससे कि बुलेट पॉइंट्स में बना रखा है। यहाँ पे देखिए आपको एक सोशल मीडिया पे सबसे पहले तो प्रोफाइल पिक्चर लगाना होता है प्रोफेशनल, उसके बाद एक कंपेलिंग बायो डालना होता है जिसमें कि शॉर्ट समरी डालते हो, अपने स्किल्स और एक्सपीरियंस और इंटरेस्ट के बारे में डालते हो आप। हाईलाइट योर एक्सपीरियंस, ठीक है, उसमें आप अपने एक्सपीरियंस को हाईलाइट करते हो, अपने स्किल्स को शोकेस करते हो सोशल मीडिया पे। आप एक प्रोफेशनल टोन यूज करते हो, एंगेज विथ अदर्स, अदर्स लोगों से एंगेज करते हो। और सबसे पहली बात कि ऑथेंटिक होना चाहिए सोशल मीडिया पे। आप जब भी प्रोफाइल बनाओ तो ऑथेंटिक और जेन्युइन चीजें ही शेयर करो एंड ट्रैक करो, ठीक है। उसके बाद स्ट्राइकिंग ऑफ कन्वर्सेशंस कैन बी ग्रेट वे टू कनेक्ट विद अदर्स। अब इसमें यहाँ पे आता है जो ग्रामेटिकल चीजें, रजिस्टर, टोन एंड वोकेबलरी। रजिस्टर क्या होता है, ग्रामेटिकल जो चीजें होती हैं उसको रजिस्टर बोलते हैं, जिसमें सेंटेंस की स्ट्रक्चर, वोकेबलरी वगैरह चीजें, जो भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है वो आ जाता है। उसके बाद टोन आता है। टोन तो आप सबको पता है कि टोन क्या होता है, किस वॉइस में आप बात कर रहे हो, किस सेंस में बात कर रहे हो, या तो काम हो या फिर रिजिड हो, या फिर जो भी टोन होती है, सरकास्टिक है या फनी है, जो भी एक टोन होता है, तो उस रिस्पेक्टफुल और प्रोफेशनल टोन जो है होना चाहिए, किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए। तो इस ये सब चीजें जो है, आप बेसिकली फॉर्मल है तो फॉर्मल में रिस्पेक्टफुल और प्रोफेशनल टोन होना चाहिए। तो यहाँ से आप ओवरऑल समझ गए होंगे टोन जो होता है वो तो सबको पता है, ठीक है। वोकैब क्या होता है, फॉर्मल वोकैबुलरी यूज करो आप फॉर्मल कन्वर्सेशन में, एंड इनफॉर्मल चीजें यूज करो। एग्जाम्पल, गुड मॉर्निंग मिस्टर स्मिथ, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू, माई नेम इज जेन एंड आई एम हियर टू डिस्कस न्यू प्रोजेक्ट विथ यू। ये एक प्रोफेशनल टोन है और इसमें प्रोफेशनल वोकैबुलरी यूज की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो। इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में जो होता है रजिस्टर, इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है रजिस्टर तो वही होता है, ग्रामेटिकल चीजें होती हैं, बट इसमें जो टोन होता है वो फ्रेंडली होता है, अप्रोचेबल टोन होता है, एनर्जी और इंथुजियाज्म होता है इसमें, ठीक है। वोकैब इसमें यूज होता है, कैजुअल वोकैब होता है, ज्यादा ऐसे वर्ड्स यूज नहीं होते हैं इसमें जो बहुत टफ हो, बिल्कुल आपको स्लैंग्स भी यूज होती हैं यहाँ पे, एंड जो नॉर्मल जो बहुत ही पॉपुलर चीजें और सिंपल वर्ड्स हैं वो यूज होती है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि हे व्हाट्सअप, माय नेम इज टॉम, तो इस टप से आप करते हो अपने फ्रेंड से बातचीत, या फिर जो भी फॉर्मल इनफॉर्मल जो भी लोग हैं उनसे आप करते हो, ठीक है। सोशल मीडिया एटिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैसे आप प्रॉपर पोलाइट बिहेवियर और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो, जिससे कि पहला होता है रिस्पेक्ट अदर्स, दूसरे की रिस्पेक्ट करना चाहिए। बी माइंडफुल ऑफ योर पोस्ट, क्या पोस्ट कर रहे हो आपको ध्यान और बिल्कुल सोच समझ के पोस्ट करना चाहिए कि आप पोस्ट क्या कर रहे हो, बिकॉज सोशल मीडिया पे आपको सब देख रहे हैं, तो वहां पे कोई ऐसा हार्मफुल या फिर ऐसी चीजें पोस्ट नहीं करनी है आपको, ठीक है। बी माइंडफुल वाइल यू पोस्ट। प्रोटेक्ट प्राइवेसी, प्राइवेसी की बहुत यहाँ पे जरूरत है, प्रोटेक्शन। तो आप ऐसे कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ना शेयर करो इंस्टा या फिर फेसबुक या फिर जो भी सोशल मीडिया यूज करो, वहाँ पे ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर दूसरे या फिर दूसरे लोगों की प्राइवेसी को भी आपको ये नहीं करना चाहिए, ठीक है, इंक्लूड नहीं करना चाहिए। अवॉइड ओवर शेयरिंग, कोई भी चीजें जो है ओवर शेयरिंग नहीं करनी चाहिए, और बहुत ही माइंडफुल होना चाहिए उन सब चीज़ों। बहुत चीज़ें वायरल होती हैं, फेक होती हैं, तो यहाँ पे बी ऑथेंटिक, ऑथेंटिक रहना है आपको। उसके बाद रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, जो भी रिस्पॉन्स आपको देना है वो बहुत अप्रोप्रिएट वे में देना है, ठीक है। अवॉइड स्पैमिंग, आपको बहुत सारे स्पैम नहीं करना है, बहुत सारे फोटोज या फिर प्रमोशनल चीज़ें डाल डाल के, स्टोरीज या फिर पोस्ट करके प्रमोशनल चीज़ें डाल के या फिर इरिलेवेंट चीज़ें डाल के आपको स्पैमिंग नहीं करनी है, अदरवाइज जो भी आपके कनेक्टेड पीपल्स होंगे वो आपको अनफॉलो कर देंगे या फिर बैड इंपैक्ट जाएगा, ठीक है। तो बाकी यूनिट 2 है एक्सप्रेसिंग द सेल्फ, कैसे आप एक्सप्रेस कर सकते हो। एक्सप्रेसिंग द सेल्फ कैन बी एन इंपॉर्टेंट वे टू कम्युनिकेट योर थॉट्स, फीलिंग्स, आइडियाज टू अदर्स। देयर आर सम टिप्स, तो टिप्स में है नो योर ऑडियंस, आपको अपने ऑडियंस को पहचानना है। फिर यूज आई स्टेटमेंट्स, व्हेनेवर एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स यूज आई स्टेटमेंट, जैसे कि आई फील फ्रस्ट्रेटेड, आई फील सो हैप्पी, इस टाइप से यूज करना है, ठीक है। प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग, बहुत सारे लोग जो है सिर्फ बोलते जाते हैं, सुनने की उनमें आदत नहीं होती है, तो वो गलत बात है, इसलिए एक्टिव लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, जेस्चर्स हो गया, पोस्चर हो गया, बहुत चीजें बयां कर देती है बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली। फिर बी ओपन माइंडेड, आपको अपने आइडियाज और पर्सपेक्टिव को बिल्कुल ओपन रखना चाहिए, बिल्कुल ओपन, ठीक है, सोफिस्टिकेटेड नहीं रखना है आपको वहां पे। प्रैक्टिस सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन ये है कि आप अपने थॉट्स फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट कर पा रहे हो टाइम के साथ साथ, और आप समझ रहे हो खुद को, वो बहुत जरूरी है। फिर कॉन्फिडेंस तो रहना ही चाहिए, बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। अब व्हेन एक्सप्रेसिंग योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स इन ब्लॉग पोस्ट या फिर जो भी चीजें हैं, तो अगर आपको लाइक्स डिसलाइक्स जो भी करना है एक्सप्रेस, तो वहाँ पे आपको स्पेसिफिक रहना है, प्रोवाइड रीजंस व्हाई यू आर लाइकिंग या फिर व्हाई यू आर डिसलाइकिंग, मेनली इन डिसलाइकिंग आपको रीजंस प्रोवाइड करने हैं।
use a positive tone while expressing dislike, avoid generalizations, engage in discussions. ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी। और इसको आप पूरा पूरा पढ़ना, मैं भी पूरा पूरा पढ़ के नहीं बता रहा हूँ बिकॉज ये आप समझ पाओगे खुद, और मैं आपको शॉर्ट समरी टाइप से दे रहा हूँ। फिर कंसीडर योर ऑडियंस, ठीक है, ये सब हो गया। When it comes to writing formal informal correspondence such as email announcement, तो वहाँ पे भी आपको अपने इंटरेस्ट को एक्सप्रेस करना है या डिक्लाइन करना है, तो उसके भी तरीके होते हैं जो कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हो। पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको इस पीडीएफ को। फिर मेकिंग रिक्वेस्ट, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, ये सब चीजें हैं। एक्नॉलेज एंड नेगोशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी कोई मैसेज आता है तो इसको एक्नॉलेज करना है, या फिर कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है तो वहाँ पे एक्नॉलेजमेंट या फिर नेगोशिएशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो ध्यान देने वाली बात है। इसके 3 पॉइंट्स हैं, 3-4 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। पहला एक्टिव, लिसन एक्टिवली, एक्नॉलेज द पर्सपेक्टिव, प्रोवाइड योर ओन पर्सपेक्टिव, मतलब दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी आपको एक्नॉलेज करना है, फिर अपना पर्सपेक्टिव आपको प्रोवाइड करना है। फिर लुक फॉर कॉमन ग्राउंड, कॉमन ग्राउंड खोजना है, ठीक है, वहां से कम्युनिकेशन और फर्दर अच्छा होता है। फिर नेगोशिएट रिस्पेक्टफुली, कोई भी चीज आपको नेगोशिएट करना है तो रिस्पेक्टफुली करो। फिर अपने फीडबैक लेने की भी आदत डालनी है, सीख फीडबैक, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड यूनिट आ गया हमारा एक्सप्रेसिंग विजुअली, ठीक है। इसमें क्या है कि कैसे आप विजुअली एक्सप्रेस कर सकते हो, तो आपको एक विजुअल उसमें बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ पे मैंने बुलेट पॉइंट्स में बना दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। सिंप्लीफाई एंड ऑर्गेनाइज, यूज अप्रोप्रिएट विजुअल एड्स, जैसे कि कोई भी ब्लॉग वगैरह में आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करोगे। यूज कलर एंड कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट, यूज विजुअल्स टू टेल स्टोरी, ज्यादा विजुअल्स यूज करो स्टोरीज बताने के लिए, और क्रिएटिव हमेशा रहो, ये सब चीजें हैं, ठीक है। और अब ब्लॉग्स वगैरह में क्या है, स्टार्ट विथ हुक, अगर कोई इंटरेस्टिंग या एंगेजिंग बात है वहां से आप स्टार्ट करो ब्लॉगिंग वगैरह में। शेयर योर बायोग्राफी, शेयर योर ऑटोबायोग्राफी, ये सब चीजें कर सकते हो। बी ऑथेंटिक, यूज विजुअल एड्स, एंड विद ए कॉल टू एक्शन, लास्ट में आप कॉल टू एक्शन जैसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ये सब फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, या फिर जो भी चीज़ होती है ये सब जरूर बोले। तो ये पढ़ाया भी जा रहा है, तो अब इतना तो आप जरूर कर देना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके, एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, बिकॉज यहाँ पे आपको हेल्पफुल चीज़ें ही मिलने वाली हैं। कभी आपको यहाँ से निराश नहीं होना पड़ेगा, काफ़ी बेनिफिट में रहोगे आप, ठीक है। तो बाकी आगे बढ़ते हैं, स्ट्राइकिंग रैपोर्ट और कनेक्टिंग। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि कन्वेंशनल लैंग्वेज यूज़ करके आप कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें जो आपकी रीजनल चीज़ें हैं वो उसको यूज़ करके आप अपने ब्लॉग्स को एक्सप्रेसिव बना सकते हो और ऑडियंस को कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मेरा अगर कोई रीजनल लैंग्वेज है और मैं पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करता हूँ, और अगर मैं वीडियो में उस रीजनल लैंग्वेज या स्लैंग या फिर कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करूँ, तो वो जो कनेक्ट कर पाएंगे, मेरे जो रीजन के जो ऑडियंस होंगे वो मेरे से कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। फिर यूज ह्यूमर, ह्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमर जो एक अच्छा फ्रेंडली और लाइट टोन में आप ह्यूमर को इस्तेमाल करो तो बहुत बेनिफिट करेगा आपको। यूज पर्सनल एनेक्डोट्स, यूज डिस्कोर्स मेकर्स, यूज क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत सारी चीजें कर सकते हो आप। फिर मॉडरेटिंग कंटेंट में ये होता है कि यहाँ पे आपको देख सकते हो बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे भी पॉइंट्स में लिख दी हैं, इसको आप पढ़ लेना। यूज विजुअल्स टू इलस्ट्रेट योर नैरेटिव्स, कैसे आप विजुअल्स को यूज करके अपने नैरेटिव्स को एक्सप्रेस कर सकते हो। कीप विजुअल्स रिलेवेंट, अपने जो भी विजुअल्स यूज किए वो रिलेवेंट होने चाहिए। यूज अ कंसिस्टेंट स्टाइल, इनकॉर्पोरेट विजुअल क्यूज, यूज अ वैरायटी ऑफ विजुअल्स, बैलेंस विजुअल विथ नैरेटिव, ठीक है। तो दिस आर ऑल द टर्म्स, एंड आपको मैंने शॉर्ट में जल्दी जल्दी से कोशिश किया कि समझा सकूं, जिससे कि ज्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको ओवरऑल आइडिया भी लग जाए। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा था फिर भी इस वीडियो से आपको काफी समझ में आ गया होगा। एंड इस नोट्स को अगर एक बार गो थ्रू कर लो, सिर्फ और सिर्फ 8 पेजेस का है, गो थ्रू कर लो, अच्छे से पढ़ लोगे, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और अभी क्वेश्चंस कैसे आएंगे इस पे तो कोई नहीं जानता, बट सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने पूरी कवर कर दी, तो यहाँ पे बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंस रखना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करा जिसके पास जीई डिजिटल कम्युनिकेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए